गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। क्यों मैम क्यों नहीं क्लास होगा? हाँ, क्या क्या होगा मैम कल से क्यों नहीं क्लास होगा? आप बोलिए। तुम लोग ज्वाइन नहीं करते हो इसलिए। अंत में क्या होगा, यही होगा ना कि छोड़ दिया जाए। अब इन लोग को जरूरत नहीं है। रोनी, तुम इतने क्लास में अटेंटिव रहते हो, तुम्हारी कॉपी करेक्शन करके तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। हाँ रोनी, मार्क्स देखे हो ना? सब लोग अपना देख लेना। मैं सब क्लास में पोस्ट कर दी, सी का पोस्ट नहीं की। चेक तो उसी दिन कर ली थी, बट उसको देखूंगी। एक ही साथ दोनों का पोस्ट कर दूंगी, सी का अगला अभी जो होने वाला है और पिछला। तुम लोग वैसे देख सकते हो अपना घर को। चलिए आज क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। बोलिए। टेल मी द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। Tell me the importance of forest. एड्रेस करो। आरव बोलो। Forest is very important in our lives. Forests are the breathing lungs of the civilization. Forests help us to breathe by converting carbon dioxide into oxygen. Yes. They also provide home for animals. Many people depend on forest for their livelihood. Yes. Trees also help in keeping the earth cool and help in causing rainfall. Roots of the trees bind soil particles, help to raise the groundwater level and prevent flood. ठीक है। बाकी सब बोलो। आरव ने तो पूरा कहा, सार्थक ने एक क्यों कहा? सारा कहिए। सार्थक और सारे भी बताइए। Forests are known as breathing lungs of earth. They provide safe habitat to all wild animals. Many people depend on forest for their livelihood. Trees also help in keeping earth cool. Large forest covers help in causing rainfall. Yes. Roots of the trees bind the soil particles. Trees help to raise the groundwater level and prevent floods. Good. अच्छा, पीयूष से बाद में पूछेंगे। पीयूष का हैंड रेस दिख रहा है। अदिति ने हैंड रेस किया था, पर अदिति अब दिख नहीं रही है। अदिति, अदिति क्या हो गया? अच्छा, अब अनन्या दिख रही है। बोलो अनन्या। Forests are the breathing lungs of the civilization. It helps us to breathe by converting carbon dioxide into oxygen. They provide safe habitat to the wild animals. Many people depend on forests for their livelihood. Trees also help in keeping the earth cool. Large forest cover helps in causing rainfall. Roots of the trees bind soil particles. They help to raise the groundwater level and prevent floods.
Next question. Name two trees of deciduous forest. Sal teak. Very good. Sal and teak. साल and teak. Okay, very good. ने Some हाँ हाँ बोलो, कुछ और बोल रहे थे. bamboo sheep. Yes, Bamboo and shisham. bamboo and shisham also. ठीक है. Name two trees of Mediterranean forest. Cork, olive, cork, citrus fruit. Yes, good. अच्छा, name some some trees of evergreen forest. Rosewood, mahogany, ebony, rubber, plum. Mahogany, rosewood, and rubber. हाँ Mahogany and हाँ palm tree, हाँ. rubber, rosewood, Palm, ebony. rubber, rosewood, ebony. Plum, ठीक है. rubber, Mahogany, ebony, rosewood. ठीक है. Famous animal of Australia. Kookaburra, 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 emu, and sloth bear. kookaburra. कोकाबुरा, ईमू और कोला बियर. ठीक है. नेक्स्ट है why the areas under forest is depleting. अगर सिंगल वर्ड में पूछा जाए तो क्या बोलोगे? Because Due of to due to deforestation. urbanization. Okay. Okay. Due to urbanization, Overpopulation. overpopulation, हाँ, industrialization. और अगर मैं 4 choices दे दूं, natural calamity, climatic change, human interference and water storage. Human interference. What Yes. is human interference? Human interference, the area under forest is depleting. देख रही हूँ पीयूष, तुम्हारे मैसेजेस दिख रही हूँ. अच्छा, नेक्स्ट है humus help to maintain dash of the soil. Fertility. ठीक है. अब अगर पूछे कि what is humus? Humus is a Organic matter. Human is an organic matter. Humus is an organic component which is made up of dead plant and animals. हाँ, dead and decay plant and animals form humus. Dead and decay plant and animals form humus. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है distinguish between a national park and wildlife sanctuary. A national park is a well-defined area for the protection of wildlife and biodiversity. Wildlife sanctuary. It is a declared protected area in which limited human activities are permitted. National park. Visitors can only visit the park. No one has a right to use any forest products. Wildlife sanctuary. Hunting of animals and cutting of trees are banned. Okay, Shweta Raj बोलो. A national park is well-defined area for protection of wildlife and biodiversity. Visitors can only visit the park. No one has right to use any forest product. Collection of firewood
timber from any part of the forest is totally prohibited. Grand Canyon National Park of USA as an example, and Okay. wildlife sanctuary. It is declared protected area in. It is declared a protected area in which limited human activities are permitted. Hunting of animals and cutting of trees are banned. People can collect firewood timbers, and medicinal herbs. Example: Manas Wildlife Sanctuary. वेरी गुड प्राची, ठीक है, प्राची ने मैसेज किया, ठीक है। विपाशा बोलो। Wildlife Sanctuary. It is a declared protected area. National Park. A national park is a well-defined area for the protection of wildlife. Wildlife sanctuary, limited human activities are permitted. National Park, visitors can only visit the park. A wildlife sanctuary, hunting of animal and cutting of trees are banned. In National Park, no one has a right to use any forest product. A wildlife sanctuary, people can collect firewood, timber, and medicinal herbs in a moderate amount. Example: Manas Wildlife Sanctuary of India and National Park, collection of firewood timber from any part of forest is totally prohibited. Example: Grand Canyon National Park of USA. ठीक है विपाशा, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था ना? मैंने तुम्हें मार्क्स दे दिया था ना कॉपी देखकर? यस मैम, आपने कॉपी भेजी थी, स्नैप वक्त नहीं। हाँ हाँ समझ गया, मैंने भेजी थी ना, हो गया था ना? Yes, मैंने मैं देख कर दे दी थी, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन हो गया। आज 2-4 बच्चे दूसरे सेक्शन के भी भेजे हैं, तो याद नहीं आ रहा कि अभी तुम्हारी बात सुनकर कि तुम्हारा मैं भेजी कि नहीं भेजी मार्क्स। ठीक है मैम, भेज दिए आप। हाँ, जिसके भी नहीं रहे वे लोग मतलब कि पैनिक मत होना कि मैम मेरा मार्क्स नहीं है। सिर्फ हमको इन्फॉर्म करके एक मैसेज कर देना और अपनी कॉपी को रीसेंड कर देना, क्योंकि स्नैप होमवर्क कुछ लोगों की मतलब कॉपी किसी की ये कंप्लीटेड में रखता है और कुछ को नॉट कंप्लीटेड में रख देता है। तो तुम्हारे पास तो मैसेज चला जाता है कि सबमिटेड सक्सेसफुली, बट वो नॉट कंप्लीटेड में रह जाता है। तो जब नॉट कंप्लीटेड है तो हम देखेंगे कैसे? तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं, आप हमको दीजिएगा, हम चेक कर देंगे। ठीक है अच्छा, अब बोलो सारिका, बोलो सजेस्ट एनी 3 इम्पोर्टेंट मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज। 3 important measures for the protection of trees are: trees help us to bind the यस पीयूष, आपका आंसर सही है। 1 पॉइंट आपने लिखा, मैं अगर 3 नंबर में पूछूं तो क्या बोलोगे? सारिका बोलो। मैंने हाँ तुम ठीक बोल रही हो, आगे बोलो। लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट मेजर्स बोला है, मैंने उसके फायदे नहीं पूछे हैं। 3 तरीका बताइए मुझे। कुछ बच्चों के एफॉरेस्टेशन। सार्थक मत बोलिए, सार्थक हम देख रहे हैं जिसको जिसको पूछेंगे। आस्था का भी मैसेज आ रहा, ठीक है, विपाशा ठीक है, बट हर कोई अलग अलग पॉइंट बोल रहे हैं। आप लोग कोई भी 3 पॉइंट एक साथ नहीं बोल रहे हैं। सारिका डिस्कनेक्ट हो गई है। अनन्या घोष तब तक बोल दो आंसर, फिर मैं हाँ विपाशा ने 2 पॉइंट बोले। अनन्या जल्दी बोलो आंसर। Afforestation, each one plant in one policy. Efficient utilization of forest products are uses of substitutes of wood. सारिका बोलो, डिस्कनेक्ट हो गई थी, बोलो सारिका।
Yes, ma'am. Deforestation or on large scale and plantation of trees, each one plant policy, and utilization of forest products and usage of substitutes of wood, discouraging shifting cultivation, which causes loss, enforcement of a number of laws to protect forest and prohibit deforestation. वेरी गुड। सार्थक के तीनों पॉइंट सही हैं। आस्था ने एक पॉइंट लिखा। आस्था बाकी 2 पॉइंट भी लिखिएगा। और ठीक है, क्वेश्चन चेंज करती हूँ। अनन्या सिंह, साक्षी, आप लोग रेडी हो जाइए। आरत के भी सही हैं आंसर, अनन्या सिंह और साक्षी, और रेडी हो जाइए। क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रॉपिकल deciduous forest and coniferous forest. अनन्या सिंह, यस मैम। बोलो। ट्रॉपिकल deciduous और coniferous के डिफरेंसेस बताइए। Deciduous forests are also known as monsoon forests. Yes. They receive summer rainfall in the months of June, July, August, September. ठीक है। Trees are medium in height, and common trees are sal, teak, bamboo, and shisham. ठीक है। और किसका? Coniferous. Coniferous trees are commonly known as mountain forests. ठीक है। The precipitation is received in the form of snow in winter. Trees are conical in shape and are tall. Common trees are pine, silver, fir, chestnut, and walnut, etc. ठीक है। और एक सजेशन देती हूँ, दोनों साइड का साथ साथ करते चलना। जैसे कि एक में एग्जाम्पल लिख रहे हो और दूसरे में लिख दोगे कि दिस फॉरेस्ट आर कॉल्ड दिस एंड दैट, तो अलग हो जाएगा। जहां एग्जाम्पल इधर है तो इधर भी एग्जाम्पल, इधर किसे कहते हैं तो इधर भी किसे कहते हैं, इधर इसके फीचर तो इधर भी इसके फीचर, है ना। इसलिए दोनों साइड साथ साथ चलना। ठीक है। रौनित ने एक भी आंसर नहीं बोला है, रौनित बताइए। रौनित 2 चेहरा लगा करके चला गया कहाँ? रौनित, लगता है रौनित खाने चला गया। आई साक्षी एकदम नहीं बोलती है। साक्षी, इतने अच्छे से क्लास करके अब क्या हो गया, इसको एकदम नहीं बोलती है। साक्षी, हर्षराज, हर्षराज, यस मैम। बोलिए। कोनिफेरस एंड डिसिडियस के डिफरेंसेस। क्या हुआ? रौनित का माइक ही अनम्यूट नहीं हो रहा है। तो लिख के दिखाओ ना रौनित, मैसेज चैट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, श्वेता राज बोलो। श्वेता का हैंड दिख रहा है। हर्ष को क्या हो गया? हर्ष की भी माइक म्यूट नहीं हो रही है। अदिति, ड्यू टू माई नेट गेट एंड। अच्छा ठीक है, ठीक है अदिति, ठीक है, ठीक ठीक। श्वेता, हाँ बोलो बोलो। Tropical deciduous forests are also known as monsoon forest. Coniferous forests are also known as mountain forest. Tropical deciduous forests are commonly found in
Mexico, India, and northern part of Australia, etc. And मैम एक मिनट. हाँ ठीक है ठीक है. मैम भूल गए. भूल गई. अच्छा ठीक है. वेरी ऑनेस्ट, सो नाइस, बहुत अच्छा लगा. कोई बात नहीं, दोबारा से लर्न कर लीजिएगा, है ना. मैं बोली थी इसीलिए दोनों साइड का बोलो. अच्छा श्वेता सोच के बोलो. तो अब हम पूछते हैं तुमको, जैसा हम अपना तरीका बताते हैं. पहले बोलो डिसिडियस फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है और कोनिफेरस फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है. जल्दी बताइए, दोनों साइड का एक एक पॉइंट बताइए. सेंटेंस पूरे सेंटेंस में बोलिए, पूरे सेंटेंस में. डिसिडियस, हाँ हाँ. Forests are also known as monsoon forests. हाँ. Coniferous forests are also known as mountain forests. ठीक है. आप बताइए डिसिडियस फॉरेस्ट के फीचर बताइए, कोई भी फीचर, लंबा, नाटा, चौड़ा, मोटा, जो भी हो. चलिए बताइए, देखती हूँ क्या बताते हैं, फिर हम उधर का भी पूछेंगे. हम तुमसे बोलवा के रहेंगे. चलो बोलो बोलो. They have broad leaves. हाँ ठीक है. और उसका बताओ, उसके पत्ते कैसे होते हैं. जल्दी बुद्धि लगाओ. कोनिफेरस के मैम पत्ते नहीं पता मैम. ट्रीज. श्वेता कोनिफेरस फॉरेस्ट कैसा होता है, तुमको कैसे बोल रही हो, तुमको नहीं पता. कोनिफेरस फॉरेस्ट में किस टाइप के पेड़ होते हैं, इमेजिन करो. Tall and conical. Needle shaped leaves. हाँ सार्थक तो चुप ही नहीं रह पा रहा है. हम सबको सिखाना चाह रहे हैं तो सार्थक बोल दे रहा है. सार्थक, सबको बोलना आना चाहिए बेटा, भूल जाएंगे तो उसकी भी इलाज है ना. यस प्राची, सही है. हम देख रहे हैं आप लोगों का. तो श्वेता अभी आपने कहा लीव्स के बारे में कि डिसिडियस फॉरेस्ट हैज ब्रॉड लीव्स, तो झट से उधर का कहिएगा कि नीडल शेप्ड लीव्स. कोनिफेरस फॉरेस्ट के लीव्स कैसे होते हैं, सुई जैसे होते हैं. ठीक है. अब लंबाई कौन बताएगा. अनन्या को लंबाई पता है डिसिडियस कितना लंबा है. आस्था को पता है कितने लंबे होते हैं. किसे पता है, मीनल को पता है लंबाई. 30 to 40 मीटर. हाँ आस्था, हाँ 30 to 40 मीटर्स, जो भी कहा. हाँ. और कोनिकल में क्या होगा, कोनिकल में आपको नहीं लिखा हुआ है कि कितने मीटर हैं, लेकिन एक वर्ड लिखा हुआ है. वो क्या होगा, एक वर्ड, सिंगल वर्ड. यस, वेरी गुड आरव एंड सारिका, दोनों ने टॉल लिखा. वेरी गुड. तो क्या होंगे कि deciduous forest, trees of deciduous forest are 30 to 40 meters in height. और उसमें लिख दीजिएगा coniferous trees are very tall. अब चलिए आते हैं हम लोग बारिश वाली बात पर. हम आज आपको सिखा कर रहेंगे कि लर्न नहीं भी करके आप कैसे बता सकते हो. बारिश की बात पर, डिसिडियस में बारिश कब होती है, या बारिश ना भी हो तो पत्ते झड़ाने वाली बात कहो, दोनों तरफ. हाँ ठीक है, सारिका ने ठीक लिखा, समर में होती है. और वहां क्या होती है सारिका, कोनिफेरस में किसी को आइडिया है कब होती है. कोनिफेरस में कब होती है बेटा. सार्थक, सब तुम लोग डिसिडियस का लिख रहे हो. कोई विंटर. वेरी गुड वेरी गुड. देखो तो कितना अच्छा से आंसर सारा, सब लोग एक्टिव हो गए हैं. वाह रे वाह. कहाँ मेरा क्लास चुप रहता था, कुछ ही बच्चे बोलते थे, कहाँ सब एक्टिव हो गए हैं. अनन्या सिंह, आपसे भी उम्मीद करूंगी कि आप भी फटाफट जवाब दीजिए. मैं चैट बॉक्स में लिखिए, कुछ कीजिए, हर बच्चे से एक्सपेक्ट करूंगी. ये साक्षी फिर गायब हो गई क्या, हमको पता लगाने को आखिर करती क्या है. किसी दिख तो रही है. अच्छा, आज हम उसको पर्सनली मैसेज करेंगे. ये क्यों चुप हो गई है, किस बात का प्रॉब्लम है इसको. ठीक है. तो क्या बात कर रहे थे, बारिश की बात.
समर रेनफॉल होते हैं डिसिडियस में, और कोनिफेरस में विंटर रेनफॉल होते हैं। अब पत्ते झराने वाली बात पर आ जाइए। पत्ते झराने वाली बात कौन बोलेगा? एक एक पॉइंट दोनों साइड का जो लिख रहा है वेरी गुड, लिख दीजिए, किसी को सुनने में भी नहीं आएगा, हम भी देखते रहेंगे। हाँ में हाँ, रिवाकर हो, संकेत हो, कुशाग्र हो, क्यों नहीं कोई बोल रहा हो, जगत हो, समृद्धि है, रुद्र, नित्यम, अभिजीत। Ma'am, deciduous forest trees of these forests shed their leaves during the dry season. यस यस सारिका। और कोनिफेरस? And trees of these forests shed their leaves all together. सारिका गड़बड़ कर दी, शारिका गड़बड़ कर दी। जरा सोच के पहले तुमने ठीक कहा कि डिसिडियस फॉरेस्ट के ट्रीज दे शेड देयर लीव्स इन समर सीजन। रीजन बताओ तो, रीजन बताओ बेटा। यस पीयूष, यस पीयूष, यस हाँ, कंजर्व मॉइस्चर, वेरी गुड वेरी गुड। अब कोनिफेरस का कौन बुद्धि से बोलेगा? अनन्या सिंह, वेरी गुड अनन्या सिंह, कोनिफेरस का लिख दी, एकदम सही लाइन लिखी है। जल्दी बाकी लोग बोलो। हाँ, they do not shed, वेरी गुड विपाशा, आरब सब, वेरी गुड आस्था, they do not। क्यों वही लोग? अच्छा अब एक वर्ड में आंसर दो, एक वर्ड में, क्यों नहीं पत्ते झराते हैं? जल्दी से एक वर्ड में आंसर दीजिए। क्योंकि वो किस तरह के पेड़ होते हैं? यस आरब, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, इसलिए वो कभी पत्ते वो कभी पत्ते झराते ही नहीं है। वेरी गुड अनन्या सिंह, वेरी गुड। ये कितना अच्छा लगता है, क्लास में सारे बच्चे बोल रहे हैं। आप समझा करो कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं आलस की वजह से आप लोग का क्वेश्चन बैंक निकाल नहीं रही हूं, मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं। वो मिक्स्ड जब पूछने लगेंगे तो देखिएगा सब लोग, अच्छे से अच्छे बच्चे भी कंफ्यूज कर जाइएगा। मतलब अभी तो लिमिटेड चैप्टर लिमिटेड दे देती हूँ तो आप लोग बोल देते हो, उसमें मिक्स्ड रहता है क्वेश्चन बैंक में। तो जरूर करवाऊंगी, जल्दी ही करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। मैंने कहा था इस चैप्टर से दो क्वेश्चन एक जैसा आता है, एक इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट और एक इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। एक हाउ कैन यू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, एक हाउ कैन यू कंजर्व फॉरेस्ट। वेरी गुड, पीयूष के आंसर आ भी गए, वेरी गुड। कुशाग्र के आंसर एक आ गए, सबके एक एक पॉइंट आ रहे हैं, और दोनों ने दो विषय में लिखा है, अलग अलग विषय में। वेरी गुड। अभी सार्थक, अनन्या घोष, विपाशा, पीयूष, आरव है। कुशाग्र कहीं देखकर तो नहीं बोल रहे हो? कुशाग्र कहीं देखकर तो नहीं लिख रहे? वेरी गुड। तो यही बात सुनना चाहते थे, तो याद किया हूं तो इतनी देर से चुप क्यों रहा हूं? हाँ कुशाग्र, याद किया हूं तो इतनी देर से चुप क्यों रहा हूं? बोलना चाहिए था ना। चलो मीनल, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ चलो कुशाग्र, लिखो या बोलो, कुछ भी करो। और बच्चों के पार्टिसिपेशन चाहिए। सलोनी बिल्कुल चुप हो। वेरी गुड विपाशा। और कौन बोलेगा? लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर वेरी गुड, इम्पोर्टेंट फॉर एस्थेटिक वैल्यूज। ठीक है। अच्छा ठीक है, इम्पोर्टेंस तो देख ली। अब बताओ कि हाउ कैन यू कंजर्व वाइल्ड लाइफ? हाउ कैन यू कंजर्व वाइल्ड लाइफ? हु विल से? I will say. बोलो सार्थक, बोलो। Hunting and poaching of animals and birds. पोकिंग। सार्थक पोकिंग होगा, पोकिंग। चलो बोलो। हाँ बोलो। Killing of wildlife is punishable offense. क्या हुआ? सलोनी, आरब, पीयूष, मीनल, सबके आंसर सही हैं। क्या हुआ? सार्थक चुप क्यों हो गए? बोलो।
श्वेता राज National की parks and wildlife sanctuaries are being set up for different parts of the world. यस यस ठीक है। श्वेता राज, प्राची, सबके आंसर सही हैं, सबके सही हैं। हर्षराज, आप ज्यादा आंसर क्यों नहीं देते हो? वेरी गुड मिनल। हर्षराज, ठीक है। अच्छा, अब 5 मिनट बाकी हैं। एक एप्रोप्रिएट वर्ड बोलना है। इन दिस फॉरेस्ट समर्स आर ड्राई एंड मॉडरेट रेनफॉल्स इन विंटर। किस टाइप का फॉरेस्ट है? Mediterranean Summer. forest. Yes, yes, yes. Temperate softwood forest found in southern slope of Himalaya. Mountain forest. Mountain forest. Very good. Very good. Forest which do not shed all their leaves at same time. Evergreen forest. Evergreen forest. Evergreen forest. Conical shaped trees are common in these forests. Coniferous. Coniferous forest. Very good, very good. हाँ. Teak is the commercially important tree of the dash forest. Tropical deciduous forest. हाँ, deciduous forest. Very good. Very good. Deciduous forest. तब ये तो हमें लगता है। अच्छा, सच सच बताइए, कितने लोगों को याद नहीं है? थोड़ा सा और याद करने में समय लगेगा। अब जिन लोग को याद है वे लोग पुट डाउन योर हैंड। अब हाथ वही उठाएगा जिनको की कुछ और समय लगेगा याद करने में, मतलब कि आज और लगेगा, आज का समय याद करने में। कुशाग्र से बड़े आंसर पर हो, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है बेटा, चैप्टर को रीड करो, है ना? चैप्टर रीड करो ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप लिख सको। ये बड़ा छोटा ये सब अब नहीं बोलते हैं, हम लोग अब बड़े हो गए हैं। अब हम लोग की बुद्धि वो नहीं रही कि बस वन वर्ड आंसर या कुछ बड़ा। क्यों बड़ा, क्यों छोटे ने क्या पाप किया है? और ये जानते हो ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो कई सारे छोटे आंसर्स को मिलाकर अभी कैसे मैंने डिसिडियस और कोनिफेरस को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। कभी उसके पत्तों के बारे में पूछती थी, कभी उसकी लंबाई पूछती थी, कभी पूछती थी बारिश कितने होते हैं, कभी पूछती थी ये पत्ते कब झड़ाते हैं। तो कितनी सारी बातें उसमें छुपी हुई है। अगर आप जानते हो तो आराम से आप उसको किसी भी आंसर में उसको अप्लाई आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम लोग सारा उसके रिप्लाई कर सके। तो कल हम आपका हो गया ना? अच्छा, अभी हाथ जो उठाया है इन लोग क्यों हाथ उठाया है? अभिजीत, सलोनी, नित्यम, प्राची, आरब तुम तो याद किए हो। जिन लोग को लर्न नहीं है उन लोग को बोली थी हैंड रेस करने। जिन लोग को जिन लोग को लर्न नहीं है, विपाशा तुम्हें तो लर्न है, श्वेता को भी लर्न है, सार्थक को भी लर्न है, प्राची हैंड रेस किया हुआ है तुम लोगों का। मैम थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किस बात का? अच्छा अच्छा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा सार्थक को। वेरी गुड सार्थक, आपने हाँ समझ गए आपको। आपने ये नित्यम को भी देख रहे हैं हैंड रेस किया। सलोनी आपको भी पढ़नी है थोड़ी सी। मोर रीडिंग इज नीडेड। कुशाग्र, वेरी गुड कुशाग्र। जिसने भी जो भी इस बात को मान रहे हो कि और पढ़ने की जरूरत है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप प्राची को भी पढ़ना है, ठीक है? विपाशा आपको भी, अभिजीत को भी, हर्षराज को पढ़ना है। हर्षराज आंसर नहीं दे रहा था, ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छे से पढ़िए और अच्छा मार्क्स चाहिए। बस नो चीटिंग, चीटिंग मत कीजिएगा। स्कूल खुलने की अगर बारी आती है तो बार बार कह रही हूँ कि टेस्ट हम लोग को स्कूल में बैठ कर ही देना होगा। मान लीजिए कि खुल जाता है तो, है ना? और इस तरह की सुगबुगाहट आपको भी न्यूज दिखने को मिलता ही होगा,
मे भी कि अगर खुल गया तब क्या करोगे? तब तो वहां बैठकर पढ़ना है। कितने सारे टीचर्स गार्डिंग पे रहते